Assalamu alaikum. I'm Bakhtavar, your English teacher for class 4. We are doing online classes because of coronavirus so that you can stay at your home and still study. Today we are going to talk about two different topics. One is letter and the other one is possessive pronouns. First of all, we are going to start with our letter to your mother informing her about your best friend. Today I'm going to tell you about the procedure, how you write it, and on what sort of part you are going to make complete focus. First of all, it has three different parts. One part is this, and then the third part is this. While writing an application or a letter, today we are basically talking about a letter, but whatever you are writing specifically. In your letter, you have to be very much keen while putting a comma or a full stop, all the patterns that we have in our letter in the very first body. This is the first body. And this is the exact format that you are going to follow in your papers or in your tests, in your classroom, in your learning, or while writing a casual letter to someone. These are the following points that you have to keep in mind. If you are doing any sort of change on your own, this is going to result in your deduction of marks. Then we have got this particular portion. This is very wide, portion number 2. You are going to start it with my dear friend and a comma. That's compulsory. In this particular portion, you have got a huge body. It is bigger than this and bigger than this, and it carries more marks than these two different bodies. What you do in this body is that it is way much creative. You can write your problem, you can write your issue, whatever you are talking about. You can just put your point of view in it, in this body. It can be creative. You can add details. You can ask whether, hi mom, how are you, hope you are doing fine and stuff, right? You can write all these things in it. And when you are winding up while telling your problems or writing your whatever issue you had, you will wind it up over here like this. When you will wind up your portion number 2, that's creative, and you can write it on your own and you can make changes, a bit changes in it with good grammar skills. You will write yours loving friend, and you have to put a comma in the very end of it, and here I have written yours, aapki. Good students, there are many students who make this sort of mistake that they write it like this: yours loving. Alright, in this very particular portion, that's on number 3, you have got yours loving friend. इसमें क्या करते हैं, there are many students जो इसको कैपिटल कर देते हैं, इसको कैपिटल कर देते हैं, लेकिन ये गलत है. आपने ये नहीं करना, ना आपने y को स्मॉल करना है, ना ही आपने l को अपनी मर्जी से कैपिटल करना है. You are going to follow the as it is format that is given on your books, right, for your own good. आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये भी स्मॉल आएगा, फ्रेंड का f भी स्मॉल आएगा, then you are mandatory that you are going to put a comma in the very end of the sentence. Then XYZ, whatever your name is, ये करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप अपने ऐसे को इस पूरे फॉर्मेट पे वाइंड अप कर देंगे. आपका ये फॉर्मेट अगर 2 नंबर होल्ड कर रहा है, 2 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्शन एंड 2 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्शन, दिस इज स्पेसिफिकली गोइंग टू सिक्योर योर 4 मार्क्स. एंड अगर आप इन दो पे फोकस करें, उनमें कोई चेंजिंग्स ना लाएं, तो ये आपके जो मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में आपको इनके लिए अलॉट किए होंगे, वो आपके कंफर्म होंगे कि आप उनको सिक्योर करो इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस स्पेसिफिक पैटर्न. सिर्फ ये पोर्शन है, पोर्शन नंबर 2, द मिडल बॉडी, जिसमें आप अपनी तरफ से चेंज ला सकते हैं कि आप वो नहीं लिख रहे जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है, लेकिन आप अपने से लिख रहे हो. बट देयर इज़ अ थिंग दैट योर ग्रामेटिकल सेंटेंसेज, योर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड योर वोकैबुलरी नीड्स टू बी वेरी मच फाइन इन इट, right? If you have that sort of grip, you have that sort of hold on your grammar, so you can write it on your own, right? So I hope you have got all the points regarding your letter now. So now we are going to talk about possessive pronoun. That's on page number 49 on your grammar books. Possessive pronoun. What is possession? First of all, in many grammar terms, we need to understand the meanings, and then it would be more easier for us to understand the whole pragmatic meaning of it. अब होता क्या है, पोजेशन क्या होती है, किसी की मलकियत, किसी की चीज़, किसी की ऑनरशिप. जब हम किसी की चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये मेरा पेन है, तो ये क्या है, ये मेरी मलकियत हो गया, राइट, मेरी पोजेशन है ये. तो पोजेसिव प्रोनाउन हम उसको कहते हैं जब हम किसी को मुखातिब करते हैं कि ये चीज़ अली की है, अली और सारा ने अपना घर ले लिया, राइट, उनकी पोजेशन बन गया वो घर. और
इट इज़ किटन्स फूड, ये एक बिल्ली के बच्चे का खाना है। किसकी पोजेशन हो गई वो फूड? वो एक बिल्ली के बच्चे का खाना हो गया, राइट। तो पोजेसिव प्रोनाउन में हमारे पास आ जाते हैं देयर, कैट्स, हमने इसके साथ ये लगा किटन्स, अलीज, हिनाज, हिज, हर, योर और योर्स। तो ये सारे हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं जब हम किसी की मलकियत को शो करना चाहते हैं कि ये उसकी चीज़ है, ये उसकी गाड़ियाँ हैं, ये उसके कमरे हैं, ये उसकी टेबल है, ये उसका बैग है, ठीक है, ये सारा का बैग है, ये सारा की बुक्स हैं। तो हम हमेशा हिज, हर, हिनाज, अलीज, देयर और ये वाला देयर है। यू नो देयर आर टू टाइप ऑफ देयर, वन इज़ विद EIR and the other one is ERE and there is a huge difference between these two. इसका मतलब होता है उसका, THEIR, that means it is showing a possession, or and whenever we are talking about THERE there, that means वहाँ। ये हम क्या बता रहे हैं? हम लोकेशन बता रहे हैं, हम क्या डायरेक्शन दे रहे हैं कि जी वो चीज़ वहाँ पड़ी हुई है। लेकिन जब हम THEIR की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टेलिंग समथिंग अबाउट द पोजेशन ऑफ समवन। तो ये है जी देयर, अली एंड सारा गॉट देयर ऑन हाउस। अली एंड सारा गॉट हाउस अगर हम करते तो पोजेशन नहीं पता लग रही कि किसका घर है वो, अली और सारा का अपना है या किसी का घर है या उन्होंने रेंट पे लिया है, क्या किया है। अली एंड सारा गॉट देयर ऑन हाउस, देयर लगाने से, पोजेशन शो करने से क्या हुआ है? वी हैव गॉट द पॉइंट दैट इट्स देयर ओन हाउस, उनकी मलकियत है। कैट्स, किटन्स, इट इज़ किटन्स फूड। अब क्या हुआ है, हमने क्या किया है कि अगर मैं कहूँ इट इज़ फूड या इट इज़ किटन फूड, ये इस तरह से नहीं जाएगा। आपने इसके साथ क्या करना है, एस का, जब एस की एडिशन आप कर देंगे तो किटन्स मतलब उसका, उसका बन जाएगा। अलीज, हिनाज, सेम थिंग इज गोइंग विद बोथ ऑफ देम। इट इज़ अलीज शर्ट, ये अली की शर्ट है। हम खाली अली नहीं लिखेंगे, वी आर सपोज टू पुट दिस एस ओवर हियर, अलीज, हिनाज, असलम्स, ठीक है। इट्स हिज कार, इट इज़ हिज कार। अब जब मैंने कहना है कि ये उसकी गाड़ी है तो मैं कहूँगी हिज। ये असलम की गाड़ी है, इट इज़ असलम्स कार, इट इज़ हिज कार। अगर मैंने कहना है कि इट इज़ हर कार, किसी लड़की को मैं मुखातिब कर रही हूँ, फीमेल जेंडर को मैं मुखातिब कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू राइट हर ओवर हियर, राइट, हर फॉर अ फीमेल जेंडर एंड इट, गलत किया मैंने, हर फॉर अ फीमेल जेंडर एंड हिज फॉर अ मेल जेंडर। फिर आ जाता है योर, दे आर योर बुक्स, ये तुम्हारी किताबें हैं, ये किताबें हैं, ये एक हमारे पास सिंपल सेंटेंस आ गया। लेकिन इसकी पोजेशन किसकी है, कौन इसको जो है ऑनरशिप किसकी है, कौन इसको जो है लेके चल रहा है, किसकी किताबें हैं, मलकियत किसकी है, वो हम बताएंगे योर। जब हम यहाँ पे योर पुट करेंगे या हिज करेंगे या हर करेंगे तो पता लग जाएगा कि स्पेसिफिक बंदे की ये किताबें हैं, राइट। तो ये हम जो देयर, कैट्स, अलीज, हिनाज, हिज, हर, योर, जब हम ये पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं तो इससे हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें जो हम सेंस डेवलप कर रहे होते हैं, इट गेट्स मोर क्लियर इन अ वे कि आप डायरेक्शन साफ दे देते हो कि जी ये उसकी किताब है, ये अली के कपड़े हैं, ये हिना की गाड़ी है, ये किटन का फूड है, राइट। तो ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, इनसे जो है आपकी डायरेक्शन वाज़ेह हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट possessive pronouns and our letter to our mother. And if you have anything regarding this, I hope you have got all the points, but if there's something that's in your mind and you want to ask, you can just contact your in charge. Thank you.